السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈس فورم آف رائٹرس اینڈ انٹلیکچوئلس کی بنیاد ہم نے اس سال فروری میں کچھ دوستوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ ایسی چیزیں جو ادارے نہیں کر سکتے، یا مختلف بیک گراؤنڈ سے میں ذرا شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ میں سندھ سے جب اسلام آباد آیا، اور اسلام آباد میں آتے ہی تھوڑے عرصے میں مجھے ایک ذمہ داری دی گئی چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کا۔ اس دوران بہت سے دوستوں سے ملاقاتیں رہیں، ادیبوں سے، دانشوروں سے۔ وہاں ایک احساس ہوا کہ ہمارے ادیبوں اور دانشوروں کو قومی فورم پر، یا جہاں پہ قومی پالیسی بنتی ہو، وہاں پہ کبھی سنا ہی نہیں جاتا ہے۔ بہت کوششوں کے باوجود اپنے طور پہ جو باغی ہیں، بغاوت ہیں، علم اٹھا لیتے ہیں، کچھ احتجاج کر لیتے ہیں، کچھ لوگ شاعری میں اپنی بات بیان کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی وائز مین کے طور پر، کبھی پڑھے لکھے لوگوں کے طور پر، صحافیوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس کو بٹھا لیتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں پڑھے ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ معاشرے کا جو سب سے اہم طبقہ یا کلاس یا گروہ کہیں، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، اس کو کبھی نہ میڈیا پہ سنا جاتا ہے، نہ کبھی حکومت سنتی ہے۔ تو آخر کیا جائے؟ یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن پر رہی، اور انہی دوران ہمارے ادیبوں دانشوروں سے ملاقاتیں بھی رہیں۔ ہمارے دوست مسعود مفتی ان لوگوں میں سے تھے جو اس بات پہ سوچتے تھے اور کڑتے تھے کہ آخر کیوں ہماری نہیں سنی جاتی، کیوں موقع نہیں دیے جاتے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کتابیں تو اپنی جگہ پہ لکھیں، چہرے مورے سے لے کر آخری دو مینار تک وہ کتابیں لکھتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور کیا جائے، اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ کیا، اور اس پہ انہوں نے کام کیا کہ سیاسی طور پہ کچھ کیا جائے، اپنی بات کہیں پہ سنائی جائے۔ اب منوانا نہ منوانا اور چیز ہے، کہیں پہ سنی تو جائے، لیکن بہت کوششوں کے باوجود وہ نہیں ہوئے۔ اکیڈمی کو چھوڑنے کے بعد میری ان سے یہ ملاقاتیں رہتی تھیں۔ ہم 3-4 لوگ اکثر کبھی لنچ پہ، کبھی کسی کے گھر، کبھی اسلام آباد کلب میں بیٹھ جاتے تھے، جن میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اور مسعود مفتی صاحب بھی تھے۔ ان دوران ہم نے کہا کہ آخر کس طرح، اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کس طرح؟ اور اگر کبھی ادیب دانشور کو کہیں موقع بھی ملتا ہے تو وہ اپنی اس وجود میں، اپنی حیثیت میں کبھی دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کوئی ادیب بھی ہے یا رائٹر ہے۔ وہاں جا کے وہی وہ سیاستدان بن جاتا ہے، وہی جس طرح باتیں ہوتی ہیں نارمل سی ہو جاتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ہمارے میں سے بندہ گیا ہے۔ تو اس بات پہ سوچتے تھے کیا جائے۔ ساری تجربے بھی تھے، کوئی سیاسی جماعت اس طرح نہیں چل سکتی، مڈل کلاس کو کون پوچھتا ہے، ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ۔ تو بہت کوششوں کے باوجود ہم نے یہی سوچا کہ سیاسی جماعت بنانا تو بڑا مشکل ہے۔ پھر کہا کہ چلو ایک ایسا گروپ بناتے ہیں دانشوروں کے نام پہ، ادیبوں کے نام پہ، اور وہ ایسی باتوں پہ بات کریں جو بات عام طور پر تابو ہو، عام طور پہ جن پہ باتیں نہ کی جا رہی ہوں، جہاں جو پتہ نہ ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں حکومت کا بیانیہ ہو سکتا ہے، اسٹیٹ کا بیانیہ ہو سکتا ہے، لیکن عوام کا بیانیہ وہ نہیں ہوتا۔ اور عوام کا بیانیہ ادیب، دانشور اور شاعر سے زیادہ اور کون زیادہ سمجھتا ہے۔ تو ایک طریقے سے ہم نے آہستہ آہستہ بات کر کے، میں نے ٹریول کیا، کے پی کے کچھ شہروں میں گیا، پھر سندھ گیا، پھر کوٹا کے 1-2 شہروں میں دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح ہم نے کوئی 80 کے قریب لائک مائنڈڈ دوستوں کو اکٹھا کر کے ابتدائی طور پہ یہ فورم بنایا۔ اور اس فورم کی پہلی تقریب ہم نے کی تھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، اور وہ تھی سندھی کے شاعر شیخ ایاز کی سالگرہ۔ اچھا رسپانس ملا۔ ہم نے تو چھوٹے سے حال میں انتظام کیا تھا، 80 لوگوں کا انتظام کیا تھا، کووڈ بھی تھا، لیکن ماشاءاللہ زیادہ لوگ آ گئے۔ امید بندی کے لوگ سننا چاہتے ہیں، اور وہ ایاز کا جو میسیج تھا، ڈکشن پبلک کا، عوام کا، جس میں اس نے بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا، حکومتی بیانیے کو چیلنج کرتا رہا، عوام کی باتیں کرتا رہا، وہ باتیں ہم نے نیشنل پریس کلب میں جب دہرائیں تو لوگوں کو بھی اچھا لگا اور اچھی پذیرائی ہوئی۔ اس سلسلے میں پھر باتیں آگے بڑھتی رہیں، اور پھر اس بیچ میں یہ کووڈ نے اور تیز آ گیا، کووڈ نے روک کے رکھا۔ بہرحال سمجھے کہ کوئی 6-8 مہینے کا وقفہ ہو گیا بیچ میں، نہ کوئی ہم نے تقریب کی، نہ کوئی سیمینار، صرف کمرے میں بند ڈسکشن دوستوں سے ہوتے رہے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی رہی، اور آئندہ کے لیے پروگرام چاک آؤٹ کرتے رہے۔ اس دوران یقیناً نومبر لاسٹ ایئر ہمارے دوست، ہمارے مہربان مسعود مفتی صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔
शुक्र है वो सेहतमंदी में गए, आखिरी वक्त तक वो दोस्तों से राब्ते में थे, जो उनसे राब्ते में थे, उनसे वो राब्ते में थे, बात भी करते थे, और एक बिल्कुल नॉर्मल तौर पर उनसे गुफ्तगू होती रही, खुशी होती थी, इंस्पायरेशन होती थी। आखिरी वक्त में मुझे काफ़ी प्रेशर में रखा इस तरह कि सिंध की तारीख मैंने पढ़ी है, उर्दू में भी पढ़ी है, अंग्रेज़ी में भी पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो सिंध की तारीख, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल मत साहब इस तरफ से ठीक है, बैठे बैठे आगे तो मुफ्ती साहब जब चले गए हमसे तो एक यकीनन एक करीब एक खाल तो पैदा हुआ, स्पेस तो पैदा हुआ, लेकिन उनकी बातें, उनमें मुझे इंतज़ाम था, वो हमें और एक्टिव करने की जस्तजू लेता रहा। और इस किस्म के बहुत से अदीब, बहुत से दानिश्वर पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो लिखते हैं उसमें वो समाज से रिलेट होकर लिखते हैं, समाज से अलग होकर नहीं लिखते। वो जब बहस मुबासा करते हैं तो भी उनको मुल्क का दुख है, दर्द है, उसका इजहार करते हैं अपने में। कुछ हैं जो हवाई लिखते हैं, हवा में चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनका नोटिस लिया जाता है, जो इश्यूज़ पे लिखते हैं, इश्यूज़ पे बात करते हैं। इसी तरह हमारे दोस्त मेहरबान है जलील अली साहब, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जिंदा लोग, वहाँ भी इस किस्म की लाइवली कि भाई जो मसाइल हैं, तो ये इस फोरम, हमारे फोरम का जो मेन मकसद जो ये है कि ऐसे लोग, ऐसे अदीब, ऐसे दानिश्वर जो लोगों के मसाइल को समझते हैं और वो बात करना चाहते हैं वोकल होकर, खुलकर, तो उनकी बात को हम आगे करें। और मसूद मुफ्ती से हमारे अपने देरीना, दोस्ताना, बरादराना ताल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन मसूद मुफ्ती की वो जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो जो पाकिस्तान के लिए उनका दुखड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए उनका दर्द है, उसको प्रमोट करने के लिए, उनके याद करने के लिए, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप दोस्तों को हमने यहाँ आने की दावत दी है, आपने हमें मतलब करके इज़्ज़त बख्शी है, आप आए हैं। उम्मीद है ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। मुफ्ती साहब पर मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बोलने वाले स्पीकर ज़्यादा खुल के मसूद मुफ्ती साहब पे भी बोलेंगे, उनकी इल्मी अदबी खिदमात के हवाले से भी बोलेंगे, इब्तिदा से लेकर उनके ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी। मुझे भी कुछ बातें याद हैं, लेकिन शेयर करना इस वक्त मुश्किल लगता है, क्योंकि वो लाड़काना का भी DC रहे, और उस ज़माने में लाड़काने के DC रहे जिस ज़माने में अभी जालिब ने लिखा था, लाड़काना चलो वरना थाने चलो, लाड़काना चलो वरना थाना चलो। उस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर लाड़काने का होना, और उस ज़माने में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जो हमें कहा गया था अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी है या पॉलिटिक्स करनी है तो कम से कम ज़िला छोड़ दो। और इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी जाने के लायक बना कि मुझे अपना ज़िला छोड़ना पड़ा, क्योंकि अपना ज़िला छोड़ के मैं कहाँ जाता। और यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जिसने हमें रिफ्यूज दिया और हमें दाखिला मिला, और फिर हम यूनिवर्सिटी के हो गए। तो इस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर, फिर लाहौर के कमिश्नर बनना, तो बहुत वो भी हालात हैं। फिर इनका बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर आना, और फिर जंगी कैदी बनना। बहुत से हैं वो दोस्त, मेरे ख्याल जिक्र करेंगे बहुत हवालों से, मैं मुफ्ती साहब के हवाले से। बहरहाल एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों का, ख़ासतौर पर यहाँ बैठे हुए हमारे मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। मुझे आप सब दोस्तों का एहसास है कि आप बहुत बिजी और बहुत मसरूफ़ हैं, वो भी इस दौर में जब ट्रैफिक भी जाम है, कोविड भी है। तो बहरहाल आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इजाज़त हूँ। बहुत शुक्रिया। मसूद मुफ्ती साहब की शख्सियत और फ़न के हवाले से बहुत उम्दा तहकीकी काम डॉक्टर मकसूदा हुसैन साहिबा ने मसूद मुफ्ती फ़न और शख्सियत के उन्वान से कर रखा है। गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मकसूदा हुसैन साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद कासिम बगियो और उनके फोरम, इंडस फोरम ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज का ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे मौका दिया कि मैं मसूद मुफ्ती के बारे में कुछ कह सकूँ। कितना मुश्किल होता है उन लोगों के बारे में कुछ कहना जो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, जिनको आप न कभी मिल सकते हैं और न बात कर सकते हैं।
مسعود مفتی کی ذات سے نہ جانے کتنوں نے فیض اٹھایا اور انہی میں ایک میں بھی ہوں۔ وہ میرے محسن تھے، وہ میرے استاد تھے۔ آج ان کی کچھ باتوں اور کچھ یادوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کتنے بڑے ادیب تھے، انہوں نے ادب سے ملک کی کس قدر خدمت کی، ان کو اپنے وطن سے کتنا پیار تھا، ان کو اپنے وطن میں رہنے والوں کا کتنا درد تھا، انہوں نے پاک جمہور پارٹی کیوں بنائی، انہوں نے اپنے سرکاری فرائض کتنی ایمانداری سے انجام دیے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے میں خود کو اہل نہیں سمجھتی۔ ہاں، کچھ سیدھی سادی باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گی۔ 1998 راولپنڈی اسلام آباد کے ایک اسکول میں، راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پر واقع ایک اسکول میں گرلز ہائی اسکول میں ہیڈ مسٹرس تھی۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اسلام آباد کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا میں نے، اور اکادمی ادبیات بھی میرا آنا جانا شروع ہوا۔ افسر مطبوعات جناب حمید کیسر صاحب نے مجھے ایک روز فون پہ بتایا کہ چیئرمین نذیر ناجی پاکستان کے قریباً 200 کے قریب ادبا اور شعراء کے بارے میں، ان کے فن اور ان کی شخصیت کے بارے میں کتابیں لکھوانا چاہ رہے ہیں، اور اگر میں بھی چاہتی ہوں تو میں اکیڈمی وزٹ کر کے اس فہرست کو دیکھ لوں جن کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ انشائیے، کچھ افسانے، کچھ اخباری کالم، کچھ مضمون، کچھ غزلیں، کچھ نظمیں لکھ کر ادب کی دنیا میں وارد ہو چکی تھی، لیکن صاحب کتاب ہونا تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور فوراً حامی بھر لی کہ کہیں حمید کیسر منکر نہ ہو جائے۔ فہرست دیکھی، مسعود مفتی کا نام مانوس لگا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ جنگی قیدی رہ چکے تھے، اور میرے والد بھی اسی کیمپ میں انہوں جنگی قیدی تھے، تو ایک ہمارا یہ بھی تعلق بنا۔ پھر ان کی لکھی ہوئی کتابوں، خاص کر وہ کتابیں جو مشرقی پاکستان پر لکھی تھیں، وہ میری پسندیدہ کتابیں تھیں، چنانچہ مسعود مفتی ہی ہمارا انتخاب ٹھہرے۔ تعلق کا دوسرا مرحلہ بظاہر کٹھن تھا۔ اکیڈمی نے کہا کہ آپ مسعود مفتی سے جا کر ان کی رضامندی کا خط لے کر آئے۔ مسعود مفتی کو فون کیا، مدعا بیان کیا، ملنے کی درخواست کی۔ جواب ملا، جی ضرور، آپ جب تشریف لانا چاہیں آپ آ جائیں۔ وقت اور دن طے ہوا، ان کے گھر گئی۔ شائستہ دھیمے لہجے کی باوقار خاتون بشریٰ مفتی پہلی ہی نظر میں اپنی اپنی سی لگی۔ نہ پاتلا انداز، نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ۔ یقین آ گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم مسعود مفتی سے ملے، انہوں نے انٹرویو کے انداز میں کچھ سوال جواب ہمارے ہوئے۔ 2-4 سوالوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گی۔ مسعود مفتی نے فرمایا، جی آپ ضرور لکھیے، اور جس طرح کی مدد آپ کو درکار ہوگی میں کروں گا۔ ہمیں لگا کہ ہم اب صاحب کتاب ہوا ہی چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو عشق کے امتحان اور تھے، اور بہت سارے تھے۔ ملاقات کے چند روز بعد بشریٰ مفتی اور مسعود مفتی اچانک میرے دفتر آ گئے۔ بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، سوچا ملاقات کر لیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مزید تسلی چاہتے ہیں کہ میں کوالیفائی کرتی ہوں یا نہیں، لیکن میرے لیے ان دونوں کا آفس آنا بہت مسرت کا باعث تھا۔ ماضی پر جب بھی نظر ڈالتی ہوں مجھے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ جہاں بشریٰ ہوتی وہاں مسعود ہوتے، اور جہاں مسعود ہوتے وہاں بشریٰ کا وجود لازمی تھا۔ مسعود مفتی کی رحلت کی خبر سنی تو جو پہلا خیال میرے دل میں آیا وہ یہی تھا، بشریٰ اکیلی ہوگی، مسعود مفتی کے بغیر وہ کیسے لگے گی۔ ایک انٹرویو میں مسعود مفتی نے کہا کہ شادی سے پہلے ان کو والدہ کی طرف سے ہر طرح کی مدد حاصل تھی، جنہوں نے ان کا آرام کا ہمیشہ ہی خیال رکھا، اور شادی کے بعد
ان کی بیوی نے ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا۔ جب میں نے بشرا سے پوچھا کہ انہیں خاوند کی دفتری مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان کے لکھنا پڑھنا ادبی سارے ان مسائل کو وہ کیسے لگتی تھی ان کو، انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسعود کا پڑھنا لکھنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے، میں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی، جب بچے چھوٹے تھے تو ان میں مصروف رہی، اور جب بڑے ہو گئے تو میرا تعلق چونکہ فائن آرٹ سے ہے اس لیے میں نے خود کو تخلیقی کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ مسعود مفتی نے بتایا کہ دونوں کے ستارے بھی ایک ہیں، یعنی دونوں پائسز ہیں، دونوں کے مزاج اور عادات بھی ملتی ہیں۔ مزاج کی اس ہم آہنگی اور موافقت نے مسعود مفتی کو ذہنی آسودگی اور عملی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مسعود مفتی نے اپنے دستخطوں کے ساتھ اپنی کتابوں کا سیٹ دیا، بعد میں ان کی جو بھی کتاب آئی وہ مجھے ایک جلد ضرور بھیجتے تھے، اور یہ سلسلہ 2 مینار تک جاری رہا۔ انٹرویو کے دوران 2 دفعہ طویل اور تفصیلی ملاقات رہی جس کو میں نے ریکارڈ کر لیا۔ نیا ایم فل کیا ہوا تھا، کتاب لکھتے وقت اس نئے علم سے میں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ مسودہ مکمل ہوا، میں نے مسعود مفتی سے درخواست کی کہ وہ اسے دیکھ لیں، میری خواہش تھی کہ ہر لفظ ان کی نظر سے گزر جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپ کی ہے، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کروں گا، ہاں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں صرف اس لیے کہ قوائف کی درستگی کے لیے، اگر کہیں کوئی سن یا کوئی واقعہ ٹھیک ہونے والا ہے تو میں وہ بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد مسودہ پڑھنے کے بعد نہ صرف اپنے تفصیلی خط میں مجھے یہ بتایا کہ اس طرح کی کتاب لکھتے وقت کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ آرٹیکل نمونے کے طور پر بھی بھیجے کہ میں استفادہ کر لوں، ساتھ ہی لکھا کہ مجھے پورا اختیار ہے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مسعود مفتی نے میرے مسودے کو پاس کر دیا، چنانچہ مسودہ لے کر رکھا دیے، بظاہر کام پسند کیا گیا۔ ممتاز ادیب اور شاعر جناب ناصر زیدی جو مسعود مفتی کے پرانے دوستوں میں سے تھے، ان سے ترمیم، تدوین اور نظر ثانی کا کام بھی کرا لیا گیا، انہوں نے ایڈٹ کیا، کتاب کو مطلوبہ ضخامت میں محدود رکھتے ہوئے توازن عطا کیا، ٹائٹل بھی تیار ہوا، ہم کتاب کے شائع ہونے کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمارے ستارے ابھی شاید گردش میں تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ 11 اکتوبر 1999 کا انقلاب بھی شاید میرے ہی خلاف سازش تھی۔ اکیڈمی کے چیئرمین تبدیل ہو گئے، اور 3 برس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ اب یہ کتاب خود سے شائع کروا لیں، اکیڈمی کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ میں نے کتاب شائع کرا لی۔ اگلے 2 برس کے بعد اکیڈمی نے خود مجھے رابطہ کیا اور کہا اب آپ مسعود مفتی پہ کتاب لکھیں، اور کہا گیا کہ آپ نے چونکہ کام کیا ہوا ہے اس لیے آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے مسعود مفتی سے رابطہ کیا، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا لکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ تو سامعین، یہ میرا اعزاز ہے کہ مسعود مفتی پہ میں 2 کتابیں لکھ چکی ہوں۔ مسعود مفتی کو وہ کتاب زیادہ پسند تھی جو میں نے پہلے خود لکھی اور خود شائع کرائی۔ مسعود مفتی انسانی رشتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کو نبھانا بھی خوب آتا تھا۔ ان دونوں نے میرے تمام بچوں کی شادیوں تک میں شرکت کی۔ ایک بچے کی شادی کے وقت یہ شاید ملک سے باہر تھے، واپس آئے، کارڈ ان کے گھر میں تھا، دونوں پہلی فرصت میرے پاس آئے اور مبارک دی انہیں۔ میں پی ایم او میں پرنسپل تھی جو خانپور ڈیم کے پاس ہے، وہاں کالج کے فنکشن میں نے ان کو کارڈ بھیجا، دل میں یہی سوچا کہ یہاں کہاں آئیں گے، لیکن میری خوشگوار حیرت مجھے ہوئی جب میں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب مجھے کہا گیا ہے کہ پروگرام تو 40 منٹ بعد شروع ہوا ہے، لیکن اب میں مختصر کرتی ہوں اس کا۔ تو میں آخر میں اپنا یہ سارا نکال کے مسعود مفتی کو ہم نے ستمبر 2020 میں سوسائٹی آف ایشین سویلائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جس کی میں پریزیڈنٹ ہوں اور ملک صاحب ہمارے پیٹرن ہیں اس کے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے حامی بھری اور انہوں نے ہمیں قائد فراموشی پہ لیکچر دیا۔ اس میں سے میں ایک اقتباس صاحب کے سامنے پڑھ کے اجازت چاہوں گی۔ کوٹ: قائد ایک ایسی فلاحی ریاست چاہتے تھے جس کا ہر شعبہ پوری جانفشانی سے اپنا اپنا کام کرے، ایک بڑے کارخانے کی طرح جس میں بڑے پرزے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی، لیکن ہر پرزہ اپنا کام اپنے انداز میں کرتا ہے تو پورا کارخانہ چلتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا پرزہ بھی خراب ہو جائے تو بڑے پرزے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قائد چاہتے تھے کہ ریاست کا ہر پرزہ مقننہ
इंतज़ामिया और अदलिया मिलकर रियासत की अज़ली और अबदी तरतीब में तवाज़ुन कायम रखें। लेकिन कायद फरामोशी के बाद जब मनमानियाँ होने लगी तो रियासत का तवाज़ुन और तरतीब बदल गई। रियासत वो रियासत न रही जिसका क्लासिकल नमूना सदियों से चला आ रहा है। बजाय इसके कि मैं अपना तज़किया तवील करूँ, मैं आपको अनवर मसूद की एक नज़म के चंद अशआर पेश करता हूँ, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सारे अमल में हमारी तरतीब कैसे बिगड़ी। नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, कन जे दौड़ दे पिछे हुंदे। नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, कन जे दौड़ दे पिछे हुंदे। अखियां हुंदियां मोढे उत्ते, वक्खी विच इक पूछल हुंदी। नौ जे हुंदे गिट्टे उत्ते, गोडे दी थां पसली होंदी। पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा केडा कोजा हुंदा। तो अनवर मसूद के नशार का इतलाक हमारी आज की रियासत में भी हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। यादों और बातों का एक वसी सिलसिला है और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम अदबी और समाजी शख्सियत मोहतरमा नईम फातिमा अलवी साहिबा। शख्सियत में शफ़क़त, मोहब्बत, इनकसारी, सादगी, वक़ार और ठहराव, आवाज़ में धीमापन, लहजे में शाइस्तगी, गुफ्तगू में रख रखाव, चेहरे पर मुस्कुराहट, तमानियत, अपनाइयत और सुकून, जो यकीनन उनकी रफ़ीक़े हयात की रिफ़ाक़त का असर था। हल्का अवाब नस शुरू किया तो मैंने डरते डरते सबसे पहले मसूद मुफ्ती साहब को फ़ोन किया। 100 किस्म के ख़दशात ने धमकाया, मगर बात करके मालूम हुआ वो बड़े आदमी ही नहीं, वो तो बहुत बड़े इंसान भी हैं। मुनासरे की तफसीलात से आगाह करते हुए शर्फ़ मुलाकात की ख्वाहिश और मुनासरे में शिरकत की दरख्वास्त की। फरमाया, नसर मजलिसी चीज़ नहीं है। मैंने कहा, हम इसे मजलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। फरमाया, मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। और फिर वो तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ चूँकि रवायती तकदीस व तहरीम नहीं होती, जिस तरतीब से साथी तशरीफ़ फरमा होते हैं उसी तरतीब से हम शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी अपने बारी आने पर अफसाना पेश किया, जिसे हम सब ने बहुत ही महवियत से सुना। शरीक मनासरा ने हर जुमले पर दाद दी। मुफ्ती साहब बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें हर इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। फरमाया, अभी आप मेरी उम्र को नहीं पहुँची, आपको मालूम नहीं बुढ़ापे के क्या मसाइल होते हैं, लिहाजा हर नशिस्त में तो नहीं, लेकिन कभी कभी ज़रूर शरीक हो जाया करूँगा। 2 मीनार छपी तो सबसे पहले ये किताब हल्का अवाब नसर को अपने दस्तखतों के साथ पेश की। वो खामोशी से अपना काम करने वाले ऐसे अजीम इंसान थे जिनकी शख्सियत में न दिखावा, न बड़ाई, न मैं, न तू, न अफसरी की खूबू, न शोहरत के हसूल की तमन्ना, मगर इनकी तहरीर में जमाल भी है और खरेपन का जलाल भी, मुशाहिदात की बारीक बीनी भी और हालात की संगीनी भी। उन्होंने कौमी, आफाकी और फ़िक्री मसाइल पर खूब लिखा। वो मुहब्बे वतन थे और सच और हक पर समझौता करने के कायल नहीं थे। हिंदुस्तान की कैद से आज़ाद होकर वतन वापस आए तो PTV से फ़ोन आया कि आप सकूत ढाका के हवाले से ड्रामे लिख सकते हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा, हाँ मैं लिख सकता हूँ। दोबारा फ़ोन आया, इसमें सरेंडर करने का जिक्र नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब ने तुरंत जवाब दिया, मैं हरगिज़ नहीं लिख सकता। मसूद मुफ्ती साहब सकूत ढाका के अनी शाहिद थे। इस सिलसिले में जंगी कैदी भी रहे। आला उहदों के मसनद नशीं ने हालात व वाक़यात का गहरी नज़र से मुशाहिदा भी किया, तजिया भी, तकाबली जायज़ा भी लिया और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर इन सब वाक़यात पर हमदर्दाना गौर भी किया और फिर इसे अपनी किताब रेज़े लम्हे, चेहरे और मोहरे में हमेशा हमेशा के लिए आने वाली नस्लों के लिए महफूज भी कर दिया। मुबसा मंटो इस्मत चुगताई इनके पसंदीदा तख्लीक़कार थे। एक इंटरव्यू में उनसे पसंदीदगी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बरमला जवाब दिया, इनमें कदर मुश्तरक जुर्रत इजहार है जो मुझे बहुत पसंद है। सवाल पूछने वाले, मगर आपके यहाँ जुर्रत इजहार इस तरह नज़र नहीं आती जैसी उनके यहाँ है। तो उन्होंने अपना अफसाना 2 खून के बारे में किस्सा सुनाया। इसी तरह 2 मीनार पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ अदवार की कथा है। आप बीती के साथ साथ एक चश्मदीद मुहक्किक की तारीखी दस्तावेज़ भी है। मुफ्ती साहब मकसदी अदब के कायल थे। उनके जहन में जो भी सवाल होते थे वो इन सवालों को अपने अफसानों में उठाते। उनकी किताब सालगिरह पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी में PhD का थीसिस भी लिखा गया। मसूद मुफ्ती साहब अपनी किताब सालगिरह के बारे में ख़ुद फरमाते हैं कि ये बज़ाहिर तो अफसाने हैं, मगर इन अफसानों में जो आफाकी, फ़िक्री और कौमी सवाल उठाए गए हैं वो काबिल गौर और काबिल तवज्जो हैं। 2 मीनार एक मुहब्बे वतन इंसान का आने वाली नस्लों के लिए वो तोहफ़ा है
उन्होंने इस जहान फ़ानी से रुखसत होने से ज़रा पहले हमारी खाली झोलियों में डालकर हमारे अंदर फ़िक्र आगही की शम्मा रोशन करने की कोशिश की है। हम जो मफाद परस्ती में सोच विचार और चांद फटक कर तारीख़ लिखने के फ़न से नाशना होते जा रहे हैं, वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल कर गुनाह अजीम के मुर्तकिब होने को गुनाह भी नहीं समझते, उनके दरमियान ये किताब एक अजीम कारनामा है। दो मीनार पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे मुफ्ती साहब उड़न तश्तरी पर बैठे कारी की उंगली पकड़े पाकिस्तान के सफ़र में हर मकाम पर रुक रुक कर और ठहर ठहर कर वाक़यात की कड़ियाँ मिलाते, तज्ज़िया करके शरीके मुतालिया की जहन साजी करते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि तारीख़ वो नहीं जो तुम पढ़ते रहे हो, सियासी कलाबाजियाँ भी वो नहीं जो तुम्हें दिखाई जाती रहीं, हालात और वाक़यात की मंजर कशी भी वो नहीं जिससे तुम्हारी जहन साजी की जाती रही। मजहबी रुझानात के पस मंज़र का भी असर नौ जायज़ा लेना चाहिए। फरमाते हैं, मुल्लायत की आंख से देखने वाले मेरे ताया ने हमारे घर आना जाना सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया कि मेरी बड़ी बहन प्राइमरी स्कूल में फ़्रॉक पहनती थी और 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बड़े भाई नीकर के साथ गले में तस्मों वाली टी शर्ट और धूप में सर पर हैट पहनते थे। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, फिर मैं जैसे तैसे दोनों मीनारों की ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ता गया तो इस रूप को मज़ीद फैलते सुकड़ते देखता रहा, जिसकी गहराई तो घटती बढ़ती रही मगर गहराई कहीं भी ना थी। उसका महदूद महवर अपनी और सिर्फ अपनी ज़ात की बख्शिश के गिर्द घूमता था, रज़ाए दीगरा और सलाए आम के तसव्वुरात से बिल्कुल खाली था। एक जगह लिखते हैं, वतन के मीनार में अचानक एक शरारे पर मेरी नज़रें जम जाती हैं और हटाए नहीं हटती क्योंकि वो इंतहाई चमकदार शरारा है। रात के आसमान पर इवनिंग और मॉर्निंग स्टाफ की तरह हर सितारे से ज़्यादा रोशन और पुरनूर। ये अख्तर हमीद ख़ान थे जो कुछ अर्सा खाकसार तहरीक के सरगर्म कारकुन रहे और फिर उम्र भर खाकसार तहरीक के तराशीदा किरदार की रोशन मिसाल और मिसाली तस्वीर बने रहे। उन्होंने 7 पर्दों के अंदर दफन होने वाली खाकसार तहरीक को उसके हकीकी किरदार के साथ जिस तरह ज़िंदा किया है वो पढ़ने और समझने के लायक है। भुट्टो के अवामी इनकलाब के बारे में लिखते हैं, पाकिस्तान का अवामी इनकलाब कार्ल मार्क्स के अवामी इनकलाब की महज शातराना निकाली थी, जिस तरह आजकल सूफ़ी शायरी पर महज धमाल की नकाली को ही सूफ़ीज़म समझा जाता है। सकूत ढाका के हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन की इस रिपोर्ट को अपने नज़रियात की अक्कासी समझते हैं कि दोस्त मुल्क के इम्पता के बावजूद जिस बेहिसी और लापरवाही से हिंदुस्तानी ख़तरे को दानिस्ता नज़रअंदाज किया गया था, उस पर हम हैरत में डूबे रह जाते हैं। शायद वो फ़ौजी हुकूमत की असल नीयत का गमाज़ था कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अतात गुज़ार नहीं बनता तो बेहतर यही है कि हम खुद ही इस सूबे से निजात हासिल कर लें, ताकि फिर मगरबी पाकिस्तान के तन आसान सियासतदानों पर हमारी हुकूमत जारी रह सके। पाकिस्तानी तारीख़ के चश्मदीद गवाह की हैसियत से उन्होंने हमें जिस पाकिस्तान की सियासी, माशरती और तहज़ीबी झलकियाँ दिखाई हैं, इस सफ़र में उनके साथ चलते चलते हमें मालूम ही ना हुआ कि दास्तान वो हमें वहीं खड़ा करके कब रुपोश हो गया और हम हैरतो इस्तजाब की दामनगिरी से दामने दिल भगोते हुए सोच रहे हैं कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, अकेले घर से पूछती है बेकसी तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। उन्होंने 2 मीनार में हमारे तख़य्युल को कई तारीख़ी झटके दिए। सिविल, अस्करी, ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों के गठजोड़ के को ज़हरे कलाकंद कहने वालों ने तो उड़ान भर ली, मगर सच लिखने वालों को वो पजीराई ना मिली जो ज़िंदा कौमें अपने मशाहिर को दिया करती हैं। थोड़ा इंतज़ार कि हम बहसियत कौम अभी सने बलोगत तक नहीं पहुँचे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नईम फातिमा अलवी साहिबा। एक सकूत, एक सानहा जिसको बीते निस्फ सदी गुजरी मगर जिसकी गूंज कहीं पाकिस्तान की कौमी और सियासी ज़िंदगी में सुनाई नहीं दी, आपने उसकी यादें ताज़ा कर दी। हमारे साथ आज के इस तकरीब में मुख्तलिफ़ कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से जो इसातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स आए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं।
और इसके साथ ही मैं मोहतरमा आयशा मसूद साहिबा को दावत दूंगी इज़हार ख्याल के लिए। आयशा मसूद साहिबा। बहुत शुक्रिया सादिया। इंडस फोरम राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का शुक्रिया अदा करूँगी। मलिक साहब मौजूद हैं, जो मैं समझती हूँ कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं। किशोर नाहिद आपा, बुशरा साहिबा, आप सब की इजाज़त से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। बात करूँगी दो बातों पे। मुफ्ती साहब की बहुत सारी किताबें हैं जिनकी आपके सामने नाम भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उस खुशकिस्मती का इजहार करूँगी कि हम वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने उनके रूबरू बैठ कर उनसे गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू सुनी और उनके यहाँ काफ़ी कई नशिस्तें ऐसी हुई जब उनसे मुलाकातें हुई। उसके बाद उनकी दो किताबों पर ज़िक्र करूँगी, लम्हे और रेज़े। लम्हे और रेज़े, और जो इसके बाद की बात है चूँकि मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगी, नीली काठी वाली डायरी। लम्हे और रेज़े मसूद मुफ्ती साहब की दोनों किताबें हैं और ये 71 की जंग के दिनों में ढाका में वो थे और हर रोज़ डायरी लिखा करते थे। तो वो जो रेज़ा रेज़ा लम्हे थे, उनको अगर आज भी हम अपनी पलकों से चुन कर कोई तस्वीर बनाना चाहें तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। अभी तक भी वो तस्वीर उसी तरह ही अधूरी है और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हमें अभी मिलने ज़रूरी हैं। मसूद मुफ्ती साहब की जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया था कि नीली काठी वाली डायरी, तो नीली काठी वाली डायरी ढाका में वो हर रोज़ लिखते थे और हर रोज़ के जो वाक़यात थे या जो समाज था या जो समाज के अफराद की सोच थी या जो लोगों के नज़रियात मिसमार हो रहे थे या बन रहे थे, वो सारे उसके चश्मदीद गवाह थे और वो हर रोज़ लिख लिया करते थे। तो जब लिखते थे तो वो एक डायरी बन गई थी। उस वक्त ढाका में कौंसलेट थे और सफारत खाने पाकिस्तान में थे। तो वो डायरी फिर एक दिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा शॉर्टकट करती चली जाऊँ ताकि टाइम बचे। तो डायरी उन्होंने एक ईरानी जो कौंसलेट थे उनको दी और कहा कि मैं तो कैद हो जाऊँगा अगर तो ये डायरी किसी भी तरीके से मेरी बेगम तक पहुँचा दी जाए। तो ईरानी कौंसलेट वो ढाका से डायरी ईरान लेकर गए। इसकी तस्दीक बाद में बुशरा साहिबा करेंगी, लेकिन चूँकि वो ईरानी थे उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को पूरा किया और वो डायरी बेगम साहिबा तक पहुँची, जिस पर इन्होंने एक ख़त लिखा कि आपकी जो नीले रंग की चीज़ गुम हो गई थी वो मुझे मिल गई है। ऐसी सुखन शनास थी, बड़े शौहर की समझदार बीवी थी। उन्होंने इस तरह की हिकमत से ये बात को वाज़ेह किया। तो मैं जो हूँ चूँकि टाइम मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जंप करती जाऊँ और बात आगे से आगे बढ़ाती जाऊँ। इदारों की भोगी साहब ने बात की, इदारों ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जब रिसर्च होती है तो वो रिसर्च किस लेवल पर हो रही है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। जब हम कायदे आज़म की बात करते हैं, जब हम अल्लामा इकबाल की बात करते हैं तो एक सवाल साथ ही आता है, कहाँ से लाएं अल्लामा इकबाल जैसा, कहाँ से लाएं कायदे आज़म जैसा। तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके अंदर वो खसूसियात, वो उनकी अंदाज़े फ़िक्र, वो नज़रियात, वो खूबियाँ हम देख सकते हैं, जिनमें एक तो शख्सियत आप समझते हैं कि कुछ तो स्टेज पे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने कौमी हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दी और मसूद मुफ्ती साहब भी उन्हीं में थे। मेरे जैसे लोग तो गज़ल लिख के शोहरत के लिए और तालियां बजाने के लिए या अफसाना लिख के फ़ौरन ही चाहते हैं। इन लोगों की खिदमत इस मुल्क के लिए हैं जो नाकाबिल फरामोश हैं। आखिरी बात ये करूँगी मैं कि सिलेबस में लम्हे 71 की शिकस्त को हम याद इसलिए नहीं करते कि हम कितना शर्मिंदा हों। शिकस्त को हम इसलिए याद नहीं करते कि ये क्या तनज़ली थी जो हमारे साथ वाबस्ता थी। शिकस्त को हम याद करते हैं कि उससे सबक हासिल करें कि कहीं कोई और शिकस्त तो हमारे सामने 50 साल बाद नहीं आ जाएगी, आपके सामने है सारे हालात। तो 71 की जंग में लम्हे, रेज़े और जो 2 मीनार है, इसको सिलेबस में शामिल होना चाहिए। मैं इसके बाद एक शो भी रिकॉर्ड करूँगी। तो हुकूमत पाकिस्तान से इस फोरम से, भोगियो साहब के फोरम से मेरा मुतालबा है कि ये सिलेबस में शामिल करें, इसकी ट्रांसलेशंस हो ताकि लोगों को हकीकत पता चले कि जो चश्मदीद गवाह थे मसूद मुफ्ती, उन्होंने क्या देखा। फ़ौज के बारे में बड़ी अजीबोगरीब नज़रियाती तनाज़ली का शिकार भी बहुत सारे लोग हैं, तो मन घड़त कहानियाँ बहुत सारी हैं। तो मुफ्ती साहब की किताब से पता चलता है कि असल कहानी क्या थी। बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ।
बहुत शुक्रिया आयशा। आज के इस तकरीब में जहाँ मसूद मुफ्ती साहब के अहलिया मौजूद हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं, इसके साथ साथ उनके खानवादे के दीगर अफराद भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब की यादों और बातों को उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके शुक्रगुज़ार हैं उनके। मैं मोहतरम आफाक मसूद मुफ्ती साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मसूद मुफ्ती साहब के हवाले से यकीनन बहुत सारे ऐसे गोशे हैं जिन पे सिर्फ वही बात कर सकते हैं, उनके एक साहबजादे की हैसियत से कि अपने वालिद को वो किस तरह से देखते हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत के सब बेटे होने की हैसियत से। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। I will be brief. शायद मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि मुझे इतने नेक, ग्लोबल सोच वाले, इल्म शज़ाज़ वालिद मिले। अभी तक यकीन नहीं आता कि 1 साल गुजर गया है और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने अबू को नहीं याद किया, स्पेशली उन लम्हों पे जब उनकी गाइडेंस और उनकी एडवाइस मुश्किल हालात में जो हमेशा होती थी। मगर इसके अलावा उनसे जो बेझिझक बातें, बेझिझक आर्ग्यूमेंट्स, हर तरह के मौजू पे जो मैं कर सकता था एक बेटे के तहत, जो अक्सर बच्चे नहीं कर सकते, बेशक आर्ट हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल इश्यूज़ हों, और हर पाकिस्तानी का फेवरेट टॉपिक मज़हब या जो मज़हब का गलत इस्तेमाल, वो उनसे मैं दिल खोल के बातें कर सकता था। जब से अब्बू गए, ना तो मैंने कोई ख़बरें देखी हैं और ना ही कोई टॉक शोज़ देखे हैं। अब्बू होते तो समझ जाते। आई वुड रैदर बी अनइन्फॉर्म्ड देन मिस इन्फॉर्म्ड। अब किससे वो बातें करूं और किससे वो शेयर करूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, मुझे एक बात का एहसास होता है कि उनकी पॉजिटिव वैल्यूज़, उनकी जो तरबियत, जो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं और मेरी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, आजकल की सोशल वैल्यू से बहुत मुख्तलिफ है। और कभी कभी ऐसे एहसास होता है कि मेरे अपने सोशल सर्कल में और आजकल की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसमें मैं काम करता हूँ, आई फील लाइक अ मिसफिट। मगर कोई बात नहीं, अब्बू हमेशा सुनते थे और समझाते थे, बेटा हर सूरत हाल में कभी असूल ना तोड़ना, लोगों की मदद करना, ना अपनी सोच को बेचना और ना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने फ़ायदे के लिए या किसी और को खुश करने के लिए। और मुझे बस एक बात का अफसोस होता है कि आजकल हमारे माशरे में पॉजिटिव रोल मॉडल्स की कितनी कमी है एज आई गेट ओल्डर। अबू एक बहुत अच्छे रोल मॉडल थे मेरे लिए और आवाम के लिए, और अपने वतन और लोगों से भरपूर प्यार करते थे। शायद हम सारे उनकी तरह नहीं हो सकते, मगर उन जैसे राइटर्स, आर्टिस्ट और उनके फ़न को ज़रूर प्रमोट और सपोर्ट करना चाहिए हम सारों को। आज सुबह से समझ नहीं आई थी कि क्या कहूँगा, बट कुछ वर्सेस मेरे जहन में आए तो मैंने लिख लिए और ये अंग्रेज़ी में पेश करूँगा 5-6 जुमले। A call I wish I had never been made, excuse me, a call I wish I would have never have been made, of a sudden loss still trying to contain. A year can go by in a wink of an eye, perhaps for those who leave, not ones left standing by. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बोगू साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। I've always been a believer of less is more. So, बहुत शुक्रिया मोहतरम आफाक मसूद मुफ्ती साहब। कुछ खुशगवार और कुछ उदास कर देने वाली यादें आपने शेयर की हमारे साथ। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मोहतरम जबार मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब की अदबी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी सियासी और वाबस्तगियों और उनके सारे सियासी और कौमी हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
नक़्बल व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जी वकार, सबको मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रिया बगियो साहब, आपने याद रखा। अभी हकीमुल मुफ्ती डॉक्टर मकसूदा कह रही थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन मेरा अपना कौल है कि औरत की खूबसूरती के पीछे पूरे का पूरा मर्द बैठा हुआ है। मुफ्ती साहब को जो आखिरी दिनों में गिला था वो ये था, मुझसे कहने लगे कि अखबार वाले लिखने वाले को पैसे नहीं देते। तो मैंने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ, मैंने आज तक कभी मुफ्त लिखा ही नहीं। जंग में मेरे इख्तलाफात हुए, मुआवजा कम हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ना लिखें, वो खुद आपके पास आएंगे लिखवाने। और मैंने कहा जब मैं किसी रोज़नामे का एडिटर हुआ, मैं तो लिखने वालों को घर से पकड़ के लाया करता था, लिखो यार हम आपको पैसे देंगे। उसमें सैयद ज़मीर जाफरी साहब शामिल थे, उसमें अहमद जावेद शामिल थे, कुछ और नाम थे। हम तो लिखने वाले को देते रहे हैं, तो लेते भी रहे हैं। तो इसलिए मैं मुफ्ती साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जनाब मसूद मुफ्ती से मेरी बेताशा खामोश मुलाकातें थी। हम रोज़ाना मिलते, मगर चुपचाप। वो दिखाई पड़ते, मैं रुक जाता, वो गुज़र जाते, मैं खेलने लग जाता। अक्सर अहमद फराज उन्हें लेने आते। एक बार नासिर जैदी के हमरा मुफ्ती साहब ऑफिस से निकले। नासिर जैदी ने देखा तो आवाज़ दी, ओए जुबार मिर्ज़ा। मैं उन्हीं दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद नासिर जैदी मसूद मुफ्ती साहब को मेरे पास लाए। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, जनाब मैं आपका समाती कारी हूँ। मुफ्ती साहब बोले, समाती कारी कोई नई सिर्फ अदब है? जी, आप जब कमिश्नर रावलपिंडी थे, ये 1974 की बात है। मैं उन दिनों रावलपिंडी नेशनल सेंटर फिरोजगंज बिल्डिंग में पश्तो का तालिब इल्म था। लिसानी फसादात से निपटने के लिए वजारत इत्तलात ने यह हल निकाला था कि सूबों में हम आहंगी पैदा करने के लिए चंद नौजवान शोरा और कलमकारों को पश्तो लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाकर उनको उन इलाकों के दौरे कराए जाएं जहां लिसानी बदमज़गी पाई जाती है। यही वजह है कि मैं 1-2 बार अपने दीगर हम जमातियों के साथ पेशावर नेशनल सेंटर पश्तो में तकरीरें और मुशायरे पढ़ने गया था। जनाब अहमद फराज रेजिडेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। मसूद मुफ्ती साहब ने कहा, लेकिन वो समाती कारी वाला मामला तो ना खुला? हाँ, वो ऑपरेशन सेंटर में अपनी साने बशी पाकिस्तान की यादें सुनाने आया करते थे तो मैं सुना करता। इस नाते से आपका समाती कारी हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कराए। नासिर जैदी ने कोई जुमला कहा जिस पर हम तीनों खिलखिलाए। जनाब मसूद मुफ्ती ने मुझसे पूछा, रोज़ खेलने आते हैं? मैंने इस बात में जवाब दिया तो बोले, कभी अंदर भी आ जाया करें। ये 1993 की बात है। मैं उन दिनों हफ्ते रोज़ा चटान के लिए लिखा करता था। हमारा ऑफिस इस्लामाबाद के मेलोडी मार्केट में था। जनाब मसूद मुफ्ती उन दिनों नेशनल ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन थे। उनका ऑफिस भी मेलोडी में जीनोज रेस्टोरेंट के करीब नेशनल सैनिक हेडक्वार्टर बिल्डिंग में था। मैं हर रोज़ नेशनल ज़कात फाउंडेशन के अमले के साथ शाम को टेनिस खेलने जाया करता था। उस अमले के साथ टेनिस खेलने की वजह ये थी कि मसूद मुफ्ती साहब से पहले जो उस इदारे का चेयरमैन थे, उनका नाम कर्नल आफ्ताब मलिक था। वो मेरे दोस्त और 1965 के पाक भारत जंग के सितारे जुर्रत थे। BRB नहर का पुल उन्होंने ही उड़ाया था, जिसकी बिना पर भारत को लाहौर में जिमखाना क्लब तक पहुंचना नसीब न हुआ। मसूद मुफ्ती कमिश्नर थे, मगर कमिश्नर लगते नहीं थे। ऐसे ही करीब से चुपचाप गुजर जाते, हाथ मिलाते, गाल थपथपाते, धीमे से मुस्कराते। वैसे भी हम मुमताज़ मुफ्ती के सिवा किसी को मुफ्ती समझते ही ना थे। आजकल तो अदब में सिंधी, सराइकी, पोठवारी, बलोची, पख्तून और गोजरी तंजीमें बन गई हैं, मगर हमारी जवानी में राइटर्स गिल्ड और हल्का रबाब ज़ौक़ हुआ करता था। या अगर ग्रुप भी थे तो वेस्पा ग्रुप और लबरेटा ग्रुप थे। लाहौर में लबरेटा
ग्रुप की क़यादत जनाब अताउल्लाह कासमी के पास थी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वेस्पा ग्रुप के बानी कायद जनाब मुफ्तार मुफ्ती थे। वेस्पा ग्रुप के दीगर मेंबरान में जनाब एहसान अकबर, मंशा जान, नजमी सिद्दीकी, डॉक्टर शुजा पाशा और मंसूर कैसर थे। जनाब मसूद मुफ्ती को हमने मुफ्ती तब माना जब अक्टूबर 1974 में उनका मुकम्मल चेहरा हमारे सामने आया। उस एक चेहरे में हज़ारों लाखों चेहरे देखने को मिले, खुश शक्ल चेहरे भी और घनौने भी। वो साले मशीर पाकिस्तान के चश्मदीद गवाह थे। वो सही मानों में तरक्की पसंद और रोशन ख्याल कलबकार थे। इस्लाम से ज़्यादा तरक्की पसंद और रोशन ख्याल दीन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जनाब मसूद मुफ्ती बहुत बड़े मुसलमान, उससे कहीं ज़्यादा वो बड़े इंसान थे। वो एक खुफिया सूफ़ी थे। मुफ्ती तो वो थे ही, मजज़ूब भी थे। हाँ, उनके जज्ब की कैफियत चेहरे नामी उनकी उस रुदात से देखने को मिलती है जब इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में क़याम के 5 दिनों में वो हालात का जायज़ा एक अदीब के तौर लेते रहे। कुरान के मुताबिक कायनात इंसान का एक हिस्सा है। इंसान बहुत बड़ी कायनात है, जबकि साइंस इंसान को कायनात का जुज़ कहती है, मादे पर यकीन रखती है। जनाब मसूद मुफ्ती साइंस पर नहीं, कुरान पर यकीन रखते थे। बहुत शुक्रिया मोहतरम जब्बार मिर्ज़ा साहब। मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी मसूद मुफ्ती साहब पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी मुख्तलिफ़ एशियाई ममालिक में सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। हालात ज़माना और रफ्तार ज़माना को देखने की एक ख़ास तरह की नज़र रखते थे और उसी के मुताबिक ज़िंदगी को देखा, समझा और पेश किया। मगर ख़ुद उनके फ़िक्र फ़न को एक फ़िक्शन राइटर किस निगाह से देखता है, यह मोहतरम हमीद शाहिद साहब से जानेंगे। मोहतरम हमीद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। बगुआ साहब ने आखिर फोरम ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स बना लिया। शुक्र है ये साथ दानश्वरों के साथ इन्होंने राइटर्स को रखा, वरना दानश्वरों के बारे में आजकल तो ये कहा जा रहा है कि इनके पास अपनी फ़िक्र नहीं होती। ये ऐसा ज़माना आ गया है कि दानश्वरों की दानिश चोरी हो गई और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये हादसा हो गया। ये राइटर्स ही हैं जिनसे बगुआ साहब को गिला है कि वो खामोश रहते हैं या हवाई बातें कभी कभी कर जाते हैं। अभी उन्होंने शुरू में कहा है वो हवाई बातें नहीं होती, वो हवा में बातें रहती हैं, और जो रहती हैं हवा में बातें तो वो अगली नस्लों तक मुंतकिल होती हैं और अपने असरात छोड़ती हैं। मुमताज़ मसूद मुफ्ती साहब के बारे में मैंने एक से ज़्यादा मज़ामीन लिखे, लेकिन आज मौका नहीं है कि उन मज़ामीन में को पढ़ा जाए। कुछ यादें हैं, कुछ 2-4 बातें हैं जो वो करना चाहूँगा। इसलिए कि मसूद मुफ्ती बुनियादी तौर पर ऐसे शख्स नहीं थे जो महज जिसे बगुआ साहब कहते हैं ना हवाई बातें करने वाले, ऐसा नहीं था। वो बुनियादी तौर पे अमली आदमी भी थे, अमली बनना चाहते थे। ये अलग बात है कि एक तख्लीकी आदमी कितना अमली बन सकता है, उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें भी होती। जब भी हमारी मुलाकात होती वो अपने पिंडी गेब के ज़माने को याद किया करते थे, जिस वक्त उनकी वहाँ पोस्टिंग रही, और वहाँ के वो जो उस वक्त के जो वडेरे थे उनके हवाले से वो कुछ बातें करते और कुछ धमकियों का भी जिक्र करते जो उन्हें उस ज़माने में मिला करती थी वहाँ पे पोस्टिंग के दौरान में। वहाँ से लेके उस आखिरी मुलाकात तक जो मुफ्ती साहब से उनके घर में हुई और जिसमें नजीबा भी मौजूद थी, और उनकी वफ़ात से सिर्फ कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, हम उनके घर में थे और भाभी साहबा भी वहाँ पे मौजूद, और बड़ी देर हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये शख्स जिसके साथ हम बैठे बातें कर रहे हैं वो कुछ ही दिनों बाद, हमारे 4-5 दिन के बाद हमारे दरमियान नहीं रहेगा। कितना मज़ा आया था जब वो बाहर हम निकले और दरवाजे के बाहर निकलते ही हमें बाहर तक छोड़ने आए थे, और मैं गाड़ी उस चूँकि ड्राइव वे थोड़ा सा लंबा है तो मैं उसे रिवर्स करते हुए, इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइवर,
तो यास्मीन मुझे बता रही थी कि भाई इस तरह मोड़े, इस तरह करे, तो वो कहते हैं अच्छा आप पता चला है तुम्हारा ड्राइवर जो, तुम गाड़ी के ड्राइवर और तुम्हारा ड्राइवर जो है ये यास्मीन ये है उनका मिजाज। यानी कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकाल लेना है, लुत्फ वाला, लतीफ़ कि आदमी एक बड़े इशू के ऊपर भी कई बड़ी बातें हुई। मलिक साहब ने कई दफ़ा उन्होंने और मुफ्ती साहब ने इस्लामाबाद क्लब में हम बैठे वहाँ बातें की, तो वो बुनियादी तौर पे ऐसे आदमी थे जो हर लम्हा इस मुल्क के बारे में सोचते थे। उनकी आखिरी किताब जो मार्च 20 में हमें ऑक्सफोर्ड के जो मेले में कराची में उस पे और वहीं पे उन्होंने मुझे भी अता की थी, आप उसे उठा के देख लीजिए, वो आपको ऐसा शख्स मिलेगा जो इस मुल्क के बारे में लम्हा लम्हा सोच रहा है। फिर आप उस शख्स को भी पढ़ लीजिए उनकी किताबों में, जो 6 महीने मशरक़ी पाकिस्तान में रहा है, 1 महीना बांग्लादेश में रहा है क्योंकि बांग्लादेश बन चुका था, और फिर 2 साल वो एक जंगी कैदी के तौर पे हिंदुस्तान के अंदर उसकी कैद में रहा। तो इसके बारे में यहाँ इस्लामाबाद के जलसे में हमने एक प्रोग्राम किया था और मुफ्ती साहब से बड़ा तफसीली इस इशू के ऊपर गुफ्तगू की थी, और उस गुफ्तगू के दौरान उनका जो ज़ब्त था वो देखने वाला था। यानी उनकी तकलीफ जो थी वो महसूस होती थी उनकी गुफ्तगू के अंदर से। जब मैंने कहा कि हम कब संभलेंगे, इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, तो वो एक किस्म के जैसे नाराज़ हो जाते हैं, इस तरह कहते हैं हमसे क्या मुराद है, हमसे पहले ये याद रखें ये जो सारे लोग हैं ये हम में शामिल नहीं है, ये अवाम इसमें शामिल नहीं, इसमें मुल्ला, मिलिट्री और ये जो इत्तेहाद है इनका, जागीरदारों का एक टोला है जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है मिल के, ये लोग हम में शामिल हैं। और जब तक इन्हें लगाम नहीं होगी कोई, तब तक हम किसी सूरत में इस मुल्क को किसी बेहतर डगर पे नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा देख लीजिए सारी सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह ये जो उन्होंने पाक जमहूर पार्टी बनाई थी, बुनियादी तौर पे मैंने कहा कि आप कैसे कर सकते थे, कहते नहीं वो लोगों को हमने दावत दी थी कि उसमें आएँ, उसमें शामिल हों, लेकिन वो नहीं ज़ाहिर चल सकती थी, इसलिए कि यहाँ पे जो पूरा एक सिस्टम है जिसको सामने लाना होता है उसे तैयार किया जाता है। आपको याद होगा एक ज़माने में यहाँ पे बड़े दानिशवाराना किस्म के इमरान खान साहब के मज़ामीन छपा करते थे, जब वो बाकायदा उन्हें लॉन्च किया जा रहा था, तो दानिशवाराना मज़ामीन आप तकारीर की सूरत में आप देख लें वो दानिशवाराना मज़ामीन कहाँ चले गए। तो इस तरह ही लॉन्च किया जाता है यहाँ पे अफराद को, जब यहाँ लॉन्च किया जाता है तो फिर वही सियासत जो है वो आगे आती है। इस पर वो कुड़ते थे, उसमें कहते कि ये जो बुनियादी चीज़ ये है कि आम आदमी जो शरीक हो सके उस फैसलों में और फिर वो आगे बढ़ेगा तो ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर कोई हालात बेहतर हो सकेंगे। बहुत उम्दा अफसाना निगार मैं इस लिहाज से कहूँगा कि जो कौमी दर्द था बुनियादी तौर पर या जो मसाइल थे वो उनके अफसानों के अंदर ज़ाहिर होते थे, और बाज़ औक़ात उनके अफसाने खुद जो है वो रिपोर्टाज की सूरत इख्तियार कर लेते थे, यानी अफसाने की फार्म से निकलते हुए रिपोर्टाज के अंदर दाखिल हो जाते, और फिर कई दफ़ा तो वो फैसला करते थे कि नहीं मुझे रिपोर्टाज में ही बात करनी चाहिए, इसलिए कि जो बात कहना चाहते थे उसे वो कम्युनिकेट उसी तरह ही करना चाहते थे जिस तरह वो सोच रहे थे। अब ये देखिए उनके सामने किताबें आपकी फहरिस्त है, सारी उम्र उन्होंने अपने आप को लिखने के साथ वाबस्ता रखा, सारी उम्र अपने आप को मुल्क के साथ वाबस्ता रखा, इसके मसाइल के साथ वाबस्ता रखा, और इस हर्फ की हुर्मत के साथ वो वाबस्ता रहे। ऐसे आदमी जब चले जाते हैं तो जाहिर है एक खला पैदा हो जाता है, और ये खला पैदा हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहतरम हमीद शाहिद साहब। मसूद मुफ्ती साहब के फ़िक्र फ़न के हवाले से, उनकी शख्सियत, उनकी यादों के हवाले से गुफ्तगू करने वाली जितनी भी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़ुद भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं तफसीली तारुफ़ के बग़ैर उन सब शख्सियात को मदऊ कर रही हूँ। मोहतरम हारिस खलीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती साहब के फ़िक्र फ़न के हवाले से, उनकी यादों और उनकी बातों के हवाले से में शरीक करेंगे। मोहतरम हारिस खलीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और बहुत शुक्रिया सादिया आपका और डॉक्टर कासिम बुगियो कि आपने हुक्म दिया कि मैं हाज़िर हो जाऊं।
چونکہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مہینہ تھا نومبر 2020 کا. مجھے خود کووڈ تھا اور میرے 2 انتہائی شفیق بزرگ دوست اس مہینے کے دوران گزرے اور میں ان کے ظاہر ہے کہ جنازوں میں شریک نہیں ہو سکا. تو ایک تعزیت بھی خاندان کے لوگوں کو اور دوستوں کو. 10 نومبر کو انتقال ہوا مفتی صاحب کا اور 23 نومبر کو اشفاق سلیم مرزا صاحب کا. تو یہ تو سلسلہ جاری ہے. یہ جو ایک پورا ایک جو موسم مرگ ہے, خدا کرے اس سے جلد ہمیں چھٹکارا نصیب ہو. بہت ہمارے بزرگ اور بڑی بڑی شخصیات اسٹالورٹس لٹری گزر گئے اس دوران, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی اور دیگر جگہوں میں بھی. مسعود مفتی صاحب جیسا بہت ان کے بارے میں اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کو میں تائید اور توثیق کروں گا جو مجھ سے پہلے بات ہوئی ہے, اور مختصر رکھوں گا اپنی بات کو. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ابھی کئی اور مقررین ہیں, ان سے زیادہ مطلب بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس قدر ملنسار, درویش صفت اور مرنجاں برنج ہوں, اور ساتھ ساتھ بزلہ سنجی بھی, جس کی طرف حمید شاہد صاحب نے اشارہ کیا. میری ان سے آخری ملاقات تبھی ہوئی تھی جب حمید شاہد جس کا تذکرہ کر رہے تھے, اس کے بعد کووڈ کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے اور دیگر, چونکہ میں زیادہ تر وقت لاہور میں رہتا ہوں تو ملاقات نہیں ہو پائی. اور یہ فروری یا مارچ سن 2020 معذرت کے ساتھ 2020 کی بات ہے, کراچی لٹریری فیسٹیول پہ, اور وہاں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, آپ خریدیے گا نہیں. تو یہ 2 مینار, اور اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی, تو اس کا بہت قلق ہے. ایک بات یہاں ہو چکی ہے لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ اس پر زور دیا جانا ضروری ہے. یہ آپ نے میرا خیال ہے عائشہ صاحبہ نے بات کی تھی ریزے اور لمحے کی. میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں. اردو میں 1971 پر بہت کم لکھا گیا ہے, اور بہت ہی کم لکھا گیا ہے. یعنی اتنا بڑا سانحہ, ہمارے ہاں تو خیر 47 پہ بھی میری دانست میں تو بہت کم لکھا گیا ہے. یعنی افسانہ اور شعر کو آپ ایک طرف اگر رکھ کے دیکھیں اور تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں تو 47 کے مسائل بھی ہم نے ریزالو نہیں کیے ہیں, 71 تو بعد کی بات ہے. مختلف ریشہ دوانیاں اور مختلف مکاتیب فکر کے لوگوں کی آراء کو تو میں ریشہ دوانی نہیں سمجھتا, لیکن ریشہ دوانیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن مختلف مکاتیب فکر کے لوگوں نے بھی اس پر ایک انتہائی دیانتدارانہ تجزیہ ہمیں نہیں ملتا. نہ 47 پہ تو جائے کہ جب 47 پہ ہی نہیں ہے تو 71 پہ کیا ہوگا. 50 برس ہو گئے اس سال. ابھی آپ نے میرا خیال ہے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ نصف صدی گزر گئی, اور پورے پاکستان میں جو ریاست کے مستقل ادارے ہیں انہوں نے کسی کالج, یونیورسٹی, کسی انسٹیٹیوشن میں کوئی سیمینار منعقد نہیں کرنے دیا کہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم نے کیا غلطیاں, اور یہاں ہم ظاہر ہے وہی مختصر ہم ہیں, ہماری اشرافیہ نے کیا غلطیاں کیں جس کے نتیجے میں 1971 کا سانحہ ہوا. اور اس میں ہندوستان کا جو بھی ہاتھ تھا اس کے لیے ہاٹ بیڈ کس نے فراہم کیا, اس سب کی تفصیل آپ کو 2 مینار کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس میں مل جاتی ہے. یہ کتاب اتفاق سے میں نے آج ختم کی ہے, چونکہ میں نے یہ ڈاکٹر بوگیو جب میں لاہور جا رہا تھا پچھلے ہفتے تو انہوں نے مجھے یہ لا دی تھی, تو یہ میں نے کتاب آج ختم کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم کتاب ہے, چونکہ انہوں نے تو اس میں ابتدا میں یہ کہا ہے مفتی صاحب نے کہ یہ کوئی خود نوشت نہیں ہے یا یہ میری یادداشتیں نہیں ہیں, لیکن میں بحیثیت ایک قاری کے ان سے اختلاف کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یادداشتوں اور رپورتاج کا ایک مرکب ہے. اور یہ اس سبب سے کیونکہ لائف رائٹنگ ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں, تو یہ کہیں زیادہ اور دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر یہ محض رپورتاج ہوتا تو جو لوگ اس واقعے سے یا اس ملک سے دلچسپ یعنی اس سبجیکٹ سے ان کو اگر دلچسپی نہ ہو تو وہ اس میں اس کو یعنی کھنچتے نہیں ہیں اس کی طرف. لیکن انہوں نے اپنے پرسنل اینیکڈوٹس, واقعات, شواہد کے ساتھ, شواہد بھی دیے ہیں اور تجزیے کے ساتھ اس کتاب کو بہت ہی ایکسیسیبل, ریڈیبل اور بہت آسان بنا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس میں بھی ایک اور بھی مرکب ہے, ایک مرکب جہاں رپورتاج اور یادداشت کا ہے وہاں ایک مرکب اس میں انداز کا ہے. یعنی کہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سادہ زبان اور کہیں کہیں بہت ہی گہری علامتیں. اب ان دونوں کو برتنا, اس طرح سے انہیں بننا اور پھر اس پیرائے میں کتاب لکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہ کتاب پڑھ پایا. اس کتاب کے تھوڑے سے چند اگر میں اس پہ گفتگو, بالکل تازہ ہے چونکہ, اور میں نے ابھی اس پہ لکھا بھی ہے جو اگلے اتوار کو چھپے گا. مفتی صاحب نے نہایت دیانتداری, جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا, جو ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھی,
اور اس میں جو ان کا تجزیہ کلونیلزم سے متعلق ہے کہ نوآبادیاتی نظام نے کیا کیا، اور نوآبادیاتی نظام میں جو برطانوی استعمار ہے اس کی کیا پالیسیز تھیں، کلونیل وائلنس کیسے تھا، ایکسٹورشن اور ایکسپلائٹیشن استحصال کیسے تھا، وہیں انہوں نے نہایت توازن برتتے ہوئے جو ان کی طرز حکمرانی تھی مقامی سطح پر اور وہ کتنی مؤثر تھی اس کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس توازن کو برقرار رکھیں، چونکہ یا آپ اسے بالکل اٹھا کے رد کر دیتے ہیں یا اسے اپنا لیتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی تہذیب اور اپنی دھرتی میں آپ کی جڑیں پیوست ہوں، مگر آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کا جو درخت ہے، جو تنا ہے، اس کے لیے کون سی ہوا باد نسیم ہے اور کون سی باد سرسر ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آتا ہے ان کے ہاں جو کلونیلزم کا، جو انہوں نے اپنے بچپن جو گجرات کے حوالے سے جو ان کا سارا ریکال کیے ہیں واقعات اور طرز حکمرانی۔ دوسری اس میں بات جو مجھے تھوڑی سی ایک متضاد بات بھی لگی، لیکن بحیثیت قاری کے، اور اگر کاش حیات ہوتے وہ تو ان سے اس پہ گفتگو ہوتی، کہ اس میں بیک وقت علامہ مشرقی خاکسار تحریک اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے پناہ تعریف ہے۔ اچھا، یہ دونوں نہایت متضاد شخصیات تھیں، اور مشرقی تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور 19 مارچ 1940 کا جو میسیکر ہوا ہے خاکساروں کا لاہور میں، اس کے 4 دن بعد قرارداد لاہور پیش ہوئی ہے۔ تو یہ کیا محض اتفاقی تھے واقعات یا کیا تھا؟ اب یہ فتح محمد ملک صاحب اس پہ اتھارٹی ہیں، ان کا فوٹے ہے، یہ اس پر زیادہ بہتر وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات دلچسپ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کی کشادہ ذہنی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے جو بہت سے ہمارے جو ترقی پسند دانشور دوست ہیں جنوبی ایشیا کے رہنے والے، وہ بیک وقت لینن اور گاندھی کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ 2 انتہائی متضاد شخصیات ہیں۔ تو بالکل اسی طرح مجھے یہ محسوس ہوا، لیکن اس کو سمجھا اس طرح سے جا سکتا ہے شاید کہ جو ان کا سوشل انسپریشن تھا، جو ان اقدار کے اعتبار سے کردار سازی کے سبب سے وہ علامہ مشرقی تھے، اور ان کا جو سیاسی انسپریشن تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس طرح سے میں سمجھنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو اس کتاب میں اٹھتا ہے۔ اس کے بعد حمید شاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو، یعنی مختصر مگر جامع، تفصیل سے نہیں بلکہ جامعیت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے۔ یہ اس کتاب میں جا بجا لکھی ہے۔ یہ کتاب، اس کا انتصاب ہی اس بیوروکریسی کے نام ہے جو 1947 سے 1972 تک زندہ تھی، لیکن 58 میں اس کو مسمار کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ میرے لیے اور میرے خیال ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نیا پہلو ہے، چونکہ ہم تو جو نوکرشاہی ہے اس کو پہلے دن سے ہی ایک کلونیل انسٹیٹیوشن سمجھتے رہے، تو اسی لیے جو میں اس بات کو پہلے نقطے سے جو میں نے عرض کیا جوڑوں گا کہ انہوں نے کلونیلزم کے دونوں جو رخ تھے ان سے ہمیں متعارف کروایا۔ لیکن 1971 پہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی، میں نے بھی کچھ عرض کیا، لیکن یہ انگریزی میں تو کتابیں موجود ہیں۔ اینٹونی میسکرینس کی کتاب ہے، بلکہ 2 سے 1 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ جہارا بیگم غالباً نام ہے کشوراپا، جو ایک وہاں جن کی ڈائریز تھیں، جو ڈائریز اس طرح کی اردو میں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب اور ہے جو پدما سرخ ہے، وہ بھی لکھی گئی ہے ایک اردو میں کتاب، وہ کہیں دستیاب نہیں ہے، وہ اٹھا لی گئی تھی بازار سے اس کے، لیکن یہ کتابیں انہوں نے جس سلیقے سے لکھی ہیں کہ یہ موجود ہیں، اور انہیں واقعی جو کم از کم اگر اسکول، ہائی اسکول کی سطح پر نہیں تو یہاں چونکہ ہماری جامعات اور کالجز کے بہت سے اساتذہ موجود ہیں، تو ان کو کم از کم جو پوسٹ گریجویٹ لیول پہ انہیں پڑھایا جانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ یقین ایک مرتبہ پھر اس بات پر، یعنی اس کی توثیق ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ملک مساوی شہریت، وفاقیت اور جمہوریت کے بغیر خاکم بدہن اس کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی تو ہم نہیں چل پائیں گے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ مسعود مفتی صاحب کی زندگی کا پورا لب لباب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم حافظ خلیق صاحب، کچھ نئے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی آپ نے اور کچھ سوال بھی اٹھائے۔ ہمارے ساتھ مسعود مفتی صاحب کے دوستوں سے، ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور شخصیت موجود ہے، محترم جلیل علی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان نے
स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हम वो खुश किस्मत नस्ल हैं जिनकी अदबी तरबियत जो है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ने से, अहमद नदीम कासमी को पढ़ने से, मंटो को पढ़ने से और मसूद मुफ्ती और मुमताज़ मुफ्ती, ज़िया जलंधरी, इन लोगों को पढ़ने से हुई। अब मैं समझता हूँ कि कुछ दरवेश हमारे अदीब जो सिविल सर्विस में अजनबी इंसान थे, उनमें एक मसूद मुफ्ती भी, जैसे कुदरतुल्लाह शहाब थे, जैसे मुस्तफ़ा ज़ैदी थे, तो एक उनमें दरवेश वो भी हैं कि जिन्होंने कान नमक की कान में रहकर अपने आप को ज़िंदा रखा और अपनी मिठास को भी ज़िंदा रखा। तो कुछ बातें मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें, अदब, ये जो तारीख़ होती है कौमों की, वो दो तरह से लिखी जाती है। एक तो वो मौरख़ लिखता है और एक अदीब लिखता है। मगर अदीब की तारीख़ वो तारीख़ होती है, मैंने आज एक और जगह भी ये शेर पढ़ा, शेर तो मेरा अपना ही है, तो अपने आप को मुकर्रर सुना रहा हूँ कि एक तारीख़ हनूती है अजायब घर में, एक तारीख़ हनूती है अजायब घर में, एक तारीख़ लहू बीच रवां रहती है। तो ये अदीब शायर जो तारीख़ लिखते हैं वो हमारे लहू बीच रवां रहती है। और मसूद मुफ्ती ने भी बहुत सारी तहरीरें ऐसी ही तारीख़ के हवाले से लिखी। ये जो पाकिस्तान की दर्दमंदी है, पाकिस्तान के मौजू पर जब भी गुफ्तगू होती थी तो मसूद मुफ्ती साहब की सिर्फ गुफ्तगू नहीं, सिर्फ लफ्ज़ नहीं, उनका चेहरा, उनका पूरा जिस्म बताता था कि ये उनके लिए कितनी संजीदा गुफ्तगू है। और वो एक, मुझे हमेशा ही महसूस होता था कि पाकिस्तान के नाते वो एक कर्ब से गुज़रते रहते हैं और बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं बहुत सारे मसाइल की। और उसी दर्दमंदी में उन्होंने ये किताब लिखी। अभी हारिस बता रहे थे और मैं भी कह रहा था अभी से महबूब ज़फ़र से कि ये नुक्ता मैंने भी बहुत नोट किया। हम भी शुरू दिन से बैरोक्रेसी के बहुत मुखालिफ रहे कि शायद सारे फसाद की जड़ हमारे मुल्क में बैरोक्रेसी है। ये मेरा ख़्याल है जो पावर क्लब है ना, उसकी ताकतवर तरीन जो उसका कंपोनेंट है, उसने हमारी तवज्जो हटाने के लिए अपने एक कंपोनेंट को की तरफ इशारा उन्होंने किया। हालांकि सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ ने ब्यूरोक्रेसी को तबाह किया। तो ये मुझे पहली बार इस किताब से पता चला कि वो अर्ली तारीख़ हमारी जो डेमोक्रेसी की थी, दो बातें पता चली। एक तो ये पता चला कि जितनी अयूब के ज़माने की हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसकी सारी पॉलिसियाँ जो थी वो उस डेमोक्रेटिक अहद में हमारे ब्यूरोक्रेट्स की बनाई हुई थी, जिनकी तरबियत तो बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ों की तरफ से हुई थी, मगर जब उनको अपना मुल्क मिला तो उन्होंने अपने उसी पोटेंशियल को उसके लिए डिवोटेडली इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जब तकसीम हुई तो पाकिस्तान के हिस्से के असासे से नहीं दिए गए और इसी पर गांधी जो है वो मारा गया। तो हमने ज़ीरो से शुरू किया, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी की पॉजिटिव कारकर्दगी के नतीजे में पहले 2-3 साल के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा हो। ये तारीख़ी सच्चाई मुझे इस किताब से, दो मीनार से पता चली। और मुझे जब कोई इस तरह की बात पता चलती है पाकिस्तान के बारे में तो मैं इतना बायस हूँ कि मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं चाहता भी यही हूँ कि कुछ अच्छी बातें नुमायाँ की जाया करें पाकिस्तान के बारे में। दिन रात हम इसकी अपना बदखुइयाँ ही करते रहते हैं। अच्छा, इसी उनकी दर्दमंदी का नतीजा था कि उन्होंने पार्टी बनाई, हालांकि उनका काम नहीं था ये। मैं जैसे देखे ना, इकबाल है, वो कोई सियासतदान थोड़ा था, लेकिन उसकी जो बेचैनी थी अपनी कौम के साथ वाबस्तगी की, उसने उससे क्या कुछ करवाया। और फिर अल्लाह मियां ने तौफीक भी दी, उसके असरात भी आए। तो इसी तरीके से ये वो एक बात मैं आपको और अर्ज़ करना चाहता हूँ उनकी जो बोल्डनेस की है, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि अहमद नदीम कासमी के पर्चा जो था फ़नून, उनमें काफ़ी सारे इश्तिहार भी छपते थे। ज़ाहिर है वो उनके आमदन का एक ज़रिया भी था पर्चे के अखराजात निकालने का।
तो नदीम साहब ने एक दफ़ा शिकायत की या इस तरह का दोस्तों से कहा कि पर्चा जो है फ़नून निकालना बड़ा दुश्वार हो रहा है इसलिए कि इसकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मसूद मुफ्ती साहब ने एक डिटेल मजमून लिखा जिसमें कागज़ की कीमत से लेकर कातिब की जो है उजरत से लेकर और हर बात को लेकर उन्होंने सारा यानी शुमारियाती अंदाज में कैलकुलेट किया और फिर इश्तहारों की वैल्यू बताई कि इश्तहार इतने 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 होते हैं तो इतने उसकी वैल्यू बनती है। और दूसरा ये है कि किसी शायर अदीब को कोई पेमेंट तो की नहीं जाती, तो नेट रिज़ल्ट ये निकलता। और ये नदीम साहब की भी बड़ाई कि उन्होंने वो मजमून एज इट इज़ अपने फ़नून में छापा। किशोर आपा इसकी गवाह हैं, उन्होंने भी वो पढ़ा होगा। तो ये मजमून उन्होंने उसमें छापा। मुझे बहुत यानी दोनों बुज़ुर्गों की ये अदा मुझे बहुत पसंद आई। मेरे घर में जो ज़िंदा लोग मैं महफ़िल बर्पा किया करता था तो उसमें मेरी कोशिश यही होती थी कि जो इकबाल से, उर्दू से, पाकिस्तान से दर्दमंदाना वाबस्तगी रखते हैं, मैं उन बुज़ुर्गों को भी और उन नौजवानों को भी मैं इकट्ठा करूं और फिर देखूं कि इनमें से इनकी गुफ्तगू में से मुश्तरक बातें क्या पॉजिटिव निकलती हैं। मैं अपनी भी उसके लिए मालूमात के लिए और अपने फीडबैक के लिए ये करता रहा। मुफ्ती साहब उसमें बहुत बाकायदगी से शरीक होते थे। मेरी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती थी, वो बीमार भी थे, 2-3 दफ़ा उनका हार्ट का वो बात हो चुके ऑपरेशन, लेकिन वो आते थे बाकायदा। अच्छा, मैं हर दफ़ा दोस्तों से ये अपील करता था इतला देने के बाद कि प्लीज़ मुझे मुतला फरमाइए कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। वजह ये थी कि पूरा शहर मुझसे नाराज़ था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाता। तो मैं कहता था कि जो बंदा इनकार कर दे मैं उसकी जगह किसी को अकोमोडेट कर लूँ। ये मेरे अंदर ये सोच होती थी। तो कोई मुझे कम ही बताते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मसूद मुफ्ती साहब को ना आना हो और उन्होंने बताया ना। वो मुझे लाजमन फ़ोन करके बताते थे। तो बातों को मैं मुख्तसर करता हूँ एक शोरश कश्मीरी के शेर के साथ कि हर एक दौर के हाकिम गुलाम इब्ने गुलाम, हर एक अहद की तारीख चंद सौदाई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जलील अली साहब, बहुत उम्दा खराज तहसीन पेश किया आपने मोहतरम मसूद मुफ्ती साहब को। एक डॉक्टर मकसूदा हुसैन ने भी अपनी गुफ्तगू में किया और आयशा ने भी। मोहतरमा बुशरा मसूद मुफ्ती साहिबा का नसीब रही। मैं मुल्तमिस हूँ उनसे कि वो अपनी यादों में हमें भी शरीक करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए मोहतरमा बुशरा मसूद। हम सैंडविच और चाय बनाकर दरी और छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर निकल जाते। जिस शहर या मुल्क में होते, कहीं इधर उधर दरी बिछाकर पिकनिक मनाते। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से पूछते क्या बनाना है, किचन टेबल, बुक शेल्फ्स वगैरह। फिर लकड़ी, चिपबोर्ड, दीगर सामान बाजार से ले आते। बिजली के टूल्स निकलते, फिर सब मिलकर डिज़ाइनिंग करते। एक बार बच्चों ने टेबल टेनिस बनाने की फरमाइश कर दी। मैंने कहा घर में तो जगह नहीं, रखोगे कहाँ। सबने मिलकर ऐसा डिज़ाइन किया उन्होंने मिलकर ऐसा डिज़ाइन किया जो पूरे का पूरा डिसमेंटल हो सकता था। बहुत साल इस्तेमाल में रहा। वो उन लोगों में से थे जो परफेक्शन में बिलीव करते थे। पोर्ट्रेट बनाते, अच्छी बनाते। POW कैंप में कार्टून्स बनाकर सबको चीयर अप करते। कोई भी मसला उनके पास लेकर आ जाए, वो पूरी तवज्जो से सुनते और हल पेश करते। मुझे वो दिन भी याद है, वाघा बॉर्डर में खड़ी हूँ, जंगी कैदी वापस आ रहे हैं। आज हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वापसी का दिन है। किसी ने कहा वो मसूद मुफ्ती। जब मैंने उनकी तरफ देखा, वो गोश्त की तरह चलकर आ रहे थे। कदम ज़मीन से उठ नहीं रहे थे, शफल हो रहे थे और धूल उड़ रही थी। अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसा दिन फिर ना दिखाए। मसूद मुफ्ती सामने खड़े थे। खुदा का शुक्र है वो वापस आ गए।
हमारे 55 साल का साथ था, वो मेरी ज़िंदगी में यकदम आए और यकदम चले गए, और ये मैं सोचती रही, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आखिर में बहुत सी शुक्रिया बोगियो साहब का, उनकी टीम ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का, सब राइटर्स जिन्होंने मसूद को याद किया, दोस्तों और रिश्तेदारों का, सब ने आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया मोहतरमा बुशरा मसूद साहिबा, बहुत मुख्तसर और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू के लिए और आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं बसद अदब दरख्वास्त गुजार हूँ प्रोफेसर फ़तेह महमूद मलिक साहब से। बहुत तवील दोस्ती और रफ़ाकत मसूद मुफ्ती साहब के साथ, और उनकी रहलत यकीनन आपका ज़ाती सदमा भी है। मैंने बहुत अच्छे मज़ामीन सुने और उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे दुख हुआ यहाँ आके, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि मसूद मुफ्ती इस दुनिया में नहीं है। जब मैं घर से चला तो यही सोचता हुआ चला कि भाई मैं तो मुफ्ती साहब के इंतज़ार में था कि वो बच्चों से मिलने के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, और बस आते ही होंगे, जब आएंगे तो हमारी हफ्तावार नशिस्तें इस्लामाबाद क्लब में शुरू हो जाएगी। यकीन जानिए कि मुझे आज ये मालूम हुआ, और यहाँ बैठ के ये सोचता रहा कि चलो अगर वो चले गए, मेरा भी वक्त करीब है। वो इस्लामाबाद में नहीं है, अदबाबाद में हैं, मैं भी बहुत जल्द उनसे जा मिलूँगा, तकरीबन ऐसे ही फासले के बाद कि जो जब यहाँ से बच्चों से मिलने जाते थे तो हमारी हफ्तावार मुलाकातें ख़त्म हो जाया करती थी, और मैं मुंतज़िर रहता था कि कब वो वापस पहुँचेंगे। मैंने इस पे मुख्तसर सा लिखा भी था, लेकिन एक बात सिर्फ मैं दोहराना चाहता हूँ लिखी हुई, कि अब भी मैं गौर करता हूँ कि इतनी लंबी मुलाकातों और नशिस्तों के दौरान कभी ज़ाती मसाइल की बात ही नहीं छिड़ी। कौमी मसाइल वो मुश्किलात ही ज़ेर बहस रहे, और वो बताते रहे। उन्होंने जिनकी ब्यूरोक्रेसी से लेके तो ख़ुद अपनी सियासी जमात भी बनाई, फिर उसके बाद भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान के बारे में सोचते रहे। मैं यहाँ आते हुए भी ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि कोई और आदमी ऐसा पाकिस्तानी दानिशवर, सियासतदान कोई नज़र आए जो ये मसूद मुफ्ती साहब की तरह से दर्द वतन में इस कदर डूबा हुआ हो कि वो हर लम्हा, हर सानिया वतन की बहबूद की खातिर सोचता रहा हो, और फिर सिर्फ सोच के सो नहीं जाता रहा, हर मुश्किल को सामने देखते हुए भी खुल के कहता रहा कि अयूब खान से लेके अब तक पाकिस्तान में तसव्वुर पाकिस्तान नहीं है, उसके मुताबिक कोई अमल नहीं हो रहा। अयूब खान के दौर से अब तक अयूब खान का सदर पाकिस्तान, अयूब खान का मिलिट्री डिक्टेटर का जो तसव्वुर पाकिस्तान है वो चल रहा है। और ये लोग कहाँ थे, अयूब खान और उसके बाद आने वाले मिलिट्री डिक्टेटर, जब इकबाल ने तसव्वुर दिया पाकिस्तान का, कायद आज़म ने उस तसव्वुर को तहरीक बनाया, और अवामी जमहूरी तहरीक ने पाकिस्तान कायम कर दिखाया। अब यही
یہ سوال اٹھایا گیا تھا علامہ مشکی صاحب کا. تو علامہ مشکی صاحب جو ہیں ان میں اور تحریک پاکستان میں ایک اشتراک عمل تھا. علامہ مشکی صاحب سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار لیا، اب جا رہے ہیں مسلمانوں کو دی جائے، نہیں دیتے ہم زبردستی لیں گے. انہوں نے تربیت شروع کی قوم کی، لیکن بالآخر پتہ چلا کہ یہ کو مغلیہ دور میں ختم ہو جانے والا زمانہ اب نہیں ہے. اب دنیا بھر میں جمہوریت کا عمل دخل ہے اور ہندوستان کے رہنے والے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سیاسی نظام چنے. تو اقبال جناب مسلم لیگ ٹھیک ہے. چنانچہ تحریک پاکستان کا ہم نے زیادہ تجزیہ نہیں کیا کہ اگر ہم ایک ایک تحصیل، ایک ایک گاؤں، ایک ایک صوبے کے تحریک پاکستان کے کارکنوں کی فہرست بنائیں تو 95% وہ ہوں گے جو تحریک خاکسار سے آئے، جن کی تربیت خاکسار تحریک نے کی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی کہاں سے آئے مسلم لیگ میں؟ اچھا، ادیبوں میں محمد حسن عسکری اور ان کا سارا دبستان، سلیم احمد، انتظار حسین کس طرح سے آئے؟ یہ علامہ مشکی ہی کا بیدار کیا ہوا جذبہ تھا، اور اس جذبے کا فائدہ تحریک پاکستان کو ہوا کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کو کہ 20ویں صدی میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے مطابق، اپنے نظریہ حیات کے مطابق آزادی کے ساتھ جو شہنشاہیت کا دور ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور یوں پاکستان بنا. اچھا، اب وہ تو بھائی میرے چلے گئے، ان سے پھر بعد میں اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، بڑا وقت ہے ہمارے پاس. لیکن میں یہ اشارہ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ خود مسعود مفتی صاحب بھی اندر سے خاکسار تحریک کے تربیت یافتہ تھے، اور وہ اسی راستے سے آئے تھے. اور جو مسلم لیگ میں تحریک خاکسار کے راستے سے آیا ہے، وہ چاہے لکھنے والا نہ ہو، چاہے وہ اپنا کوئی کسی بڑی پارٹی کا لیڈر نہ ہو، وہ سچا پاکستانی ہے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو نظریے کو عمل کا بناتے ہیں سرچشمہ، تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ نظریہ سمجھ میں آ جائے، اصول سمجھ میں آ جائے، تو پھر اصول کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. میں نے لکھا بھی ہے اور بھی لکھوں گا، بہت سی یادیں ہیں، لیکن میں چونکہ اسی علاقے کا پنڈی گھیب کا رہنے والا ہوں، پنڈی گھیب نہیں ہے، وہ تو بھائی ہے میرے، لیکن تلا گنج کا رہنے والا ہوں، ایک ہی جگہ ہے نا. تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں نوابوں کی کیا حیثیت تھی. لیکن مفتی صاحب جب وہاں گئے تو انہوں نے نوابوں کی بجائے غریبوں کو، مظلوموں کو، جنہیں نوابوں نے اپنی ذاتی جیلوں میں بھر رکھا تھا، ان کا ساتھ دیا، نوابوں کا ساتھ نہیں دیا. تو مفتی صاحب ایسے شخص ہیں، کیونکہ تھے مجھ سے کہا نہیں جاتا، وہ ایسے شخص ہیں ہماری تاریخ کے کہ لاسانی ہیں. مجھے کوئی اور ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو ان کی طرح سے یگانہ روزگار ہو. تو ان چند کلمات کے ساتھ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب اب اسلام آباد میں نہیں آئیں گے لوٹ کے، مجھے عدم آباد میں جانا پڑے گا ان سے ملنے کے لیے، اور میں تیار ہوں. بہت بہت
इससे पहले कि आप पाकिश्वर नाहिद को बुलाएं, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शुक्रिया मैंने इब्तदाई तौर पर अदा किया था मुफ्ती साहब के रिश्तेदार दोस्त वो जो तकलीफ़ करके यहाँ आए। उसके अलावा हमारे स्पीकर, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला। हमारे अदीब दोस्त जो शरीक हुए, और उसके अलावा ख़ास तौर पर हमारे फोरम के मेंबरान जो शरीक हुए और साथ दिया, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। हमारे दोस्त सज्जाद मर्दी भी मौजूद हैं, नूर मोहम्मद मरी, नासिर जैदी, मंजूर सुमरो, उसके अलावा निसार शाह साहब, डॉक्टर मंजूर विसरियो, डॉक्टर कासिम सोडर, मरियम मोतीवाला, ये हमारे फोरम के दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और यहाँ हमने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे पहले जो मुझे यहाँ जिस चीज़ के आने मजबूर किया वो ये कि मैं रोज़ टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा शेर आलम बरकी, वाफ़ी चैनल के दोस्त, उन्होंने ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा अमार हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अब्दुल कादिर गौरी, मैं इन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं याद करने के लिए नहीं आई, मैं बातें करने के लिए आई हूँ। इसलिए कि मैं मुमताज़ मुफ्ती से बातें करती थी, मसूद मुफ्ती से बातें करती थी, और मेरे दो रिश्ते हैं। एक बुशरा, हम कॉलेज में इकट्ठे थे, और फिर मसूद के साथ हमारी मुलाकातें बहुत कम होती थी क्योंकि उस ज़माने में मुस्तफ़ा ज़ैदी ने लाहौर को पकड़ा हुआ था और हर बंदे को पकड़ के गुफ्तगू करता रहता था। फिर बाबीद में हमारे दरमियान दाखिल हो गया अहमद फराज, और फिर जब कभी हमें मिलने के लिए मसूद मुफ्ती से जाना होता था तो हम ये नहीं कहते थे चलो फलां से मिलने चले, हम हमेशा कहते थे चलो भाई नेक परवीन से मिला है, और वो जाके हम उनसे हर तरह की बात कर लेते थे, हंसी मजाक हर चीज़। कि जब ये बैंकॉक से भी वापस आए तो हमने कहा कि भाई इससे पूछेंगे कौन कौन सी ड्रिंक्स से नाम याद करके आए हो, तो उस पर बड़े यही क्या बातें करते हैं आप लोग। इस अरसे में इसकी तमाम बातों के बाद मसूद मुफ्ती चले गए ढाका। वो गए तो ढाका, उनसे पहले मैं 3 महीने पहले ढाका में हो आई थी। मुझे कहा था कि अल-शम्स अल-बदर जो हैं उनके ऊपर पैम्फलेट लिखो। जनरल शेर अली हमारे वजीर थे, तो मैंने दिल में कहा पैम्फलेट तो लिखा जाएगा, मैं वो तो देखूँ तो सही वो क्या रहा। और वो कुछ देख के आई जो वाकई हारिस ने सही कहा कि लिखा नहीं गया। मैंने अपनी पहली किताब बुरी औरत की कथा में भी लिखा, और इस दूसरी किताब बुरी औरत की दूसरी कथा में भी उसके बारे में लिखा है। लेकिन लिखना और बात है और देखना और बात है। वो सब कुछ जो मंजर मैंने देखे थे उसका नक्शा ये हुआ कि आखिर हमें पता चल गया, क्योंकि मेरे भाई भी वही थे, वो कैद में थे, तो पता चल गया 2 दिन पहले कि तैयारियां हो रही हैं। पीसी होटल में सारे अफसरों को और बड़े लोगों को लाया गया है, बाहर टेंट लग रहे हैं और वो लग रहे हैं। और भाई ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि ये आखिरी फ़ोन है, इसके बाद हम लोगों से फ़ोन भी ले लिए जाएंगे, हम नहीं कुछ बात कर सकेंगे। ये था मंज़र इधर, और उधर था कि नियाज़ी साहब और दूसरे साहब कह रहे थे कि हमारी लाशों के ऊपर से ऊपर कोई जाएगा, हमें कौन फतह कर सकता है। और फिर जब मैं गई इंडिया और या बांग्लादेश, तो वहाँ जो कुछ मंजर देखे वो अलग हैं, वो मैंने किताब में लिख दिए हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि अब पकड़े गए हैं मसूद मुफ्ती में तमाम अफसरों के साथ। मैं नेशनल थिएटर में थी तो मुस्तकिल बुशरा
नुमाइंदगी करती थी बड़ी सारी औरतों को बुला के फौजियों की, कि हम जुलूस निकालते थे कि उनको वापस लाओ, उनको वापस लाओ। जुलूस निकालते थे तो हामिद जलाल साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये जुलूस निकलवाने तुम बंद करो। भुट्टो साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन मेरे पास औरतों का भेजो जो जिससे मैं बात करूं। उसमें सिर्फ सिविलियन नहीं थे, उसमें सिर्फ फौजी की बीवियों को बुलाया गया। गए तो ख़वातीन ज़ाहिर है वैसे भी रोती थी, तो वहाँ जाके ज़्यादा रोने लगी। तो भुट्टो साहब ने कहा रोना बंद करो, मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो। मैंने कहा देखो, जो रोना तुम मेरे सामने कर रही हो, तुम्हें तो दुनिया भर में मैं तुम्हें भेजता हूँ, और वहाँ जाके इस रोने को वहाँ बयान करो, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, तुम्हारे मुल्क के साथ, तुम्हारे शौहरों के साथ क्या ज्यादती हो रही है। लेकिन और ये अजीब फ़िक्रे थे भुट्टो साहब के, लेकिन कोई जाके वहाँ शॉपिंग नहीं करेगी, कोई मेकअप नहीं करेगी, सर पे दुपट्टा रखेगी, और इस तरीके से आपका डेलीगेशन दुनिया भर में जाके तारुफ कराएगा कि आप लोगों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। और वाकई उस डेलीगेशन के जाने का बहुत असर हुआ, बहुत असर हुआ। और ये कि जो कुछ बाद में हुआ वो आपको पता ही है, शिमला माहदे के तहत अब इन लोगों को वापस आने की तारीख तय हो गई, और हम लोग रेडियो की तरफ से, टेलीविज़न की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सब मौजूद थे, और ख़ानदान के लोग अलग मौजूद थे। बेचारे चौधरी फजल लाही साहब हमारे सदर थे, तो वो बहुत देर खड़ा होना पड़ा था, सारा दिन खड़ा होना पड़ा था, तो वो थक जाते थे। तो मैं कहती कि चौधरी साहब तुम बह जाओ गड्डी च, तो चौधरी साहब कहते उत्थे घर खलोता है, वो मैं कहता बैठा। तो इस तरह की बात 2-4 हो जाती थी, और हमने उस ज़माने में तराने भी पढ़े लिखे थे। ये अब आ गए, देख लिया मैंने कि मसूद मुफ्ती आ गए हैं, और ये हुआ, और ये सुन लिया था कि डायरी लिखते रहे हैं, बुशरा को भेजती थी। मैं मिली और फिर मैंने कहा कि आपने कुछ पढ़ के सुनाना है, और जो कुछ लिखा है वो पढ़ के सुनाना है, नेशनल सेंटर में जलसा करते हैं। मुफ्ती साहब तैयार हो गए। आप यकीन करें, एक दिन का नोटिस था, अखबारों में आ गया, और 4 बजे जलसा शुरू होना था, और 3:30 बजे मजीद निज़ामी, अब्दुल सलाम खुर्शीद, आगा शरीफ काश्मीरी, जितने बड़े बंदे थे हम शहर के, सब 3:30 बजे आ चुके थे। फिर मैंने देखा कि रश तो 4 बजे भी कोई जगह नहीं रही। फिर हमने माइक लगाए सीढ़ियों में माइक लगाए, और सीढ़ियों पे भी सारी सीढ़ियाँ भरी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब ने कोई 5 घंटा सुनाया। इस सुनने पे न किसी ने ताली बजाई, न किसी ने वाह वाह कहा। हर तरफ आंसू और आहें थी जो किसी से ज़ब्त नहीं हो रही थी। ये था पहला वापसी का सफ़र जो मैंने उनके साथ इस तरह तय किया था। उसके बाद ज़िंदगी ने बहुत रास्ते दिखाए, बहुत कुछ हुआ, और लिखने पढ़ने के हमारे रिश्ता जो था वो बहुत मुस्तहकम था। एक ख़ानदान के लोग थे हम लोग, लेकिन मुफ्ती साहब की और मेरी एक जगह पे लड़ाई हो जाती थी, जिसमें कि फ़ौज को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा बतौर अदीब आप इस तहकीक इस बात को फरामोश कर सकते हैं कि जिस तरह टेलीविज़न और BBC और सब ने दिखाया कि किस तरह से नयाज़ी अपने तमगे डाल रहा है उनके सामने और हंस रहा है, क्या आप इस चीज़ को फरामोश कर सकते हैं? कहने के नहीं, फिर भी हमारी फ़ौज तो हमारी फ़ौज थी। और इस बात पे अक्सर मेरी उनकी चों हो जाती थी, और अब तक मुझे ये यकीन है कि अगर हमारी फ़ौज को अपने ऊपर एतमाद रखा जाता, और हमारे सरबराह जो थे
وہ عیاشیوں میں نہ ہوتے تو ہم وہی رہتے. کیونکہ اس کے بعد جب میں بنگال 2 دفعہ گئی ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ خواتین تھیں یونیورسٹی کی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بہت ناراض ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ لوگوں نے تو ہمارا بچپن چھین لیا, آپ لوگوں نے تو ہمیں بچپن سے پریشان کیا, اور اس طریقے سے ہم جوان ہوئے کہ ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا تھا, ڈر تھا جو ہمارے اندر بیٹھ گیا تھا. یہ باتیں ہوتی تو رہی, لیکن ان کو فالو اپ کرنے کے لیے اور اس درد کو دور کرنے کے لیے فیض صاحب کی غزل وہی خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد اب تک ریلیونٹ ہے اور رہے گی جب تک ہمیں سچ بولنا نہیں آئے گا. لیکن مفتی صاحب کو سچ بولنا آتا تھا, اور خدا کرے کہ ہم میں سے چند لوگ اور یہ سلیقہ سیکھ جائیں. اور شکریہ. ہم اس پورے اہتمام کے لیے ادارہ فروغ قومی زبان کے روح رواں جناب ڈاکٹر رؤوف فاروق صاحب کے شکر گزار ہیں, ان کے ڈی جی کے شکر گزار ہیں, ان کے عملے کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں یہ حال دیا لیکن آپ کے لیے چائے سے تواضع کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے. تو آپ سب دوستوں کو گزارش ہے کہ بات